Hi students, hope you all must be doing well. In the last lecture, we covered till molarity, I guess. And in today's lecture, we are going to start the normality, another term. Okay, we completed with the molarity and molality. So in the today's lecture, we are going to complete the normality and how the normality will change on dilution, how the normality, what will be the normality of solutions or third solutions when you will mix up two solutions, like one will be acid base, if both of the solutions will be bases, or if both of the solutions will be acidic. So how the normality will be changes on additions. And one more thing, those who are new to my videos, so you can just check my videos out, like I will give that like videos link in my description box, so please do have a check out in order to have a precise idea about the concept. So yeah, without taking so much time, let's start the chapter. So today actually we are going to first of all, what we are going to do today. Let's एक बार उसको लिख ही देते हैं. Number one, we will be study about normality, and number two, we will do some in-text questions like whatever has given in your NCERT book. Like there are some NCERT question. I think probably five number of questions are there in your NCERT book, like based on the concentration terms. Whatever I taught you in the previous classes. So we will do the in-text questions itself today. And if the time will allow, we will start with the Henry's law. Henry's law, which is again an important concept of this chapter, solution chapter, and there are some few of the applications are there, like related to the Henry's law. So let's start with normality. So first of all, we need to know, okay, what is normality? Normality usually hota kya hai? So normality is something like molarity. I told you that how many moles of solute has present in the volume of a solution. If I consider the volume of a solution 1 liter, or I can easily define molarity is that is the number of moles of solute present in 1 liter volume of solution. So likewise, if I want to define the normality, what is normality? So normality could be defined as like the number of gram equivalent of the number of gram equivalent of solute present in 1 liter volume of solution. 1 liter volume of solution. As we all know that solutions has two parts, right? One is your solute, another one is your solvent, and when you mix up these two part, like you will obtain a solution. So here, whenever I'm talking about normality, so normality could be easily defined as that how many number of gram equivalent of solute has present in 1 liter solution. So 1 liter volume of solution. Now talking about, I used a new term, that is gram equivalent. Okay, gram equivalent of solute. What is that? What do we usually understand by the number of gram equivalent? So in order to understand the number of gram equivalent, first of all, we need to know that what is actually gram equivalent, like how to calculate the gram equivalent. Then we will feel that concept of what actually the gram equivalent is. So yeah, so gram equivalent, there is a formula to calculate the number of gram equivalent. So I can easily say that is number of gram equivalent will be equals to a given mass of what? Given mass of solute by the equivalent mass. Given mass of solute by equivalent mass. Okay. So now the thing that is how to find the equivalent mass, right? There is a term I write over here, that is what is equivalent mass. So equivalent mass will be, the formula to find the equivalent mass will be equivalent mass equals to, that is molar mass by n factor, by n factor. ओके, सो उसको थोड़ा सा आसानी से लिखते हैं, मोलर मास बाय n factor. Molar mass by n factor. Now what is n factor is? Okay, first of all we will understand that what is the meaning of equivalent mass. What is equivalent mass? Because we have heard about molar mass or the given mass, but what about the equivalent mass? So let's understand the term what is equivalent mass.
So let's take a simple example. Let us feel this concept. Okay, what is equivalent mass? Because it's not about just mug up the formula and all. So we need to understand the equivalent mass. It means, let's suppose I'm taking an example. Let's suppose A plus 2 is an ion. Okay. So in order to convert the A plus 2 into A, okay, so A plus 2 must be gaining two number of electron. ओके, सो इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझने जाऊं तो A प्लस टू जो स्पीसीज है, जो केमिकल स्पीसीज है, या फिर जो उसको मैं आयंस बोलता हूं, तो वो आयंस अगर क्या करता है ना, दो इलेक्ट्रॉन या फिर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अगर लाइक गेन करता है, सो इट विल गिव 1 मोल ऑफ A. ओके फाइन. अच्छा, whenever I'm talking about equivalent mass or equivalent weight, that is a weight, and we will like measure it in gram, in mg, whatever there are, whatever unit has been assigned for the to measure the mass, so that like unit we will use for the equivalent mass. So simply I will understand that is equivalent mass is nothing but a mass, or that is a mass, right? So यहाँ पे जब भी मैं इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज का वेट कितना चेंज होता है जब वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है. सो इसका मतलब मेनली इक्विवेलेंट वेट का मतलब यही होता है. दोबारा मैं समझाता हूं. दैट इज, देखो, अगर ये A प्लस 2 का मैं इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालना चाहता हूं, एक बार आप चेक कर सकते हो कि A प्लस 2 से A तक आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है, दैट विल बी हाउ मच. तो राइट, सो दैट मीन्स A प्लस 2 को A में जाने के लिए उसको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं कि आपका A प्लस 2 मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकता हूं, देयर इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय, ओके, गेन्ड बाय, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि A प्लस 2 का जो मास है, लेट सपोज दिस इज x ग्राम. तो A प्लस 2 का मास कितना था? x ग्राम था. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना मास गेन कर रहे हैं? x ग्राम मास गेन कर रहे हैं. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बात करता हूं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए उसका मास कितना होना चाहिए? सो इट विल बी x बाई 2 ग्राम. सो दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट मास. इसका मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी केमिकल स्पीसीज ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम्स ले लो, तो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करता है तो उसका मास जितना बनता है, तो उसको हम मेनली इक्विवेलेंट मास बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा इधर. लेट सपोज मैं बात करता हूं कि आपका, लेट सपोज क्लोरीन की बात करता हूं. ओके, सो क्लोरीन को अब मैंने क्या किया ना, क्लोरीन को मैंने Cl माइनस में मैंने चेंज किया. ओके, सो यहाँ पे जो स्टोइशियोमेट्री होता है, दिस इज स्टोइशियोमेट्री, राइट? सो ये स्टोइशियोमेट्री को अभी मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ ना, स्टोइशियोमेट्री को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज एन मोल. सो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज एन 1 मोल. दैट मीन्स आई कुड से दैट इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन व्हेन टेक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. All right, so it will be converted to 1 mole of Cl minus. That means 1 मोल of क्लोरीन अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है, so that will be converted into 1 मोल of क्लोरीन माइनस. सो आप मुझे बताओ कि क्लोरीन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, हम कितना लेते हैं? 35.5 ग्राम लेते हैं अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं. अगर एक क्लोरीन माइनस की बात करता हूं तो दैट विल बी 35.5 AMU हम लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट. और काफी काफी सारे केसेस में उसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है. सो यहाँ पे अगर मैं 1 क्लोरीन की बात करता हूँ तो 1 क्लोरीन कितना होता है? 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितना होता है ना? 35.5 ग्राम होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं इसको इक्विवेलेंट मास के थ्रू पे अगर मैं समझना चाहता हूँ, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्लोरीन का मास कितना होना चाहिए? 35.5 ग्राम. सो आई कुड इजीली से कि इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा बेटा, इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी 35.5 ग्राम ही होगा. तो इसका इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर एग्जांपल हम लेके देखते हैं, क्योंकि इससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा. लेट सपोज मैं बोलता हूं कि मैं Al प्लस 3 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? एल्यूमिनियम में. ऑलराइट,
सो Al+3 एल्यूमिनियम जो आयन होता है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बता दो कि इसका स्टोइशियोमेट्री कितना है, अभी 1 मोल है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के साइड में भी कितना है बेटा, 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ Al+3 को कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पे वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि कितना होगा, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इजंट इट। सो अभी ये जो Al+3 है, Al+3 को मैं 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो अप्रोक्सीमेटली उसका मास आपको पता होगा कि कितना होता है बेटा, 27 होता है, इजंट इट। सो अब अगर मैं इसको फील करना चाहता हूं कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27, राइट। क्योंकि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम+3 का मास कितना है, 27। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन needed for 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम+3, isn't it? सो अगर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो एल्यूमिनियम का मास कितना होना चाहिए, 27 ग्राम होना चाहिए। बट मैं बात क्या कर रहा था, एक बार देखो तो, जो मैंने डेफिनेशन लिखा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन आई रोट हियर, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसका मास कितना होना चाहिए, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट मास इज, राइट। सो यहां पे अगर मैं उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करना चाहता हूं, ओके, उसी चीज को अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूं, सो 3 मोल के लिए एल्यूमिनियम का मास कितना है बेटा, 27 ग्राम है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर कितने ग्राम ऑफ Al+3, ऑब्वियसली 27/3, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। सो नाउ दिस 9 ग्राम इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास। सो अगर मैं बात करता हूं कि इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बेटा, एक बार चेक कर लो तो ये हो जाएगा 9 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल में क्या करूं, एक बार बताओ कि 1 मोल ऑफ कोई भी स्पीसीज के लिए, ठीक है, 1 मोल कोई स्पीसीज के लिए जो इक्विवेलेंट मास होगा, क्या मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, that is equivalent mass equals to, that is मोलर मास जो भी इसका मोलर मास था बाय n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, या फिर 1 मोल ऑफ कोई भी स्पीसीज के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेस हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द इक्विवेलेंट मास। ओवर हियर आई कैन राइट दैट इज इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास बाय n फैक्टर। ओके, किसी को अगर नोट डाउन करना है तो यू कैन प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूं एंड आई विल टेक फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, सो ओके, अगर आपने स्नैपशॉट ले लिए हो या फिर आपको लेना है तो और एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो। ऑल राइट, सो नाउ आई एम इरेजिंग इट आउट। सो अगर मैं बात करता हूं कि ये जो एन फैक्टर की बात करता हूं, तो एन फैक्टर में मेनली एन फैक्टर हम किसको बोलेंगे या फिर एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए, तो उसको भी एक बार ध्यान देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, किसी को अगर लिखना है तो एक बार आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट एंड नोट इट डाउन लेटर। Okay, now talking about calculation of n factor. Okay, now I'm putting the heading calculation of n factor. n factor को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So easily we actually understand the sense of equivalent mass. What is equivalent mass is talks about simply अगर कोई बताना चाहेगा कि 1 मोल ऑफ कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर कोई डोनेट कर रहे हैं या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई अगर लाइक एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका उस स्पीसीज का मास कितना होना चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या फिर लूज करने के लिए। सो उसको हम मेनली बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, राइट। एंड उसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हूं, दैट इज इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज एटॉमिक मास बाय क्या हो जाएगा, आपका एन फैक्टर हो जाएगा। नाउ लेट अस लर्न कि ये आपका जो एन फैक्टर रहता है ना, ये एन फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये यूजुअली हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो ये जो एन फैक्टर होता है, तो देखो हमारा जितने भी केमिकल स्पीसीज होते हैं, राइट, या फिर हमारे जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह करें, तो वहां पे हमारा जो केमिकल स्पीसीज होता है वो मेनली हमारा तीन तीन चार तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि हमारा जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होता है, इधर वो एसिड्स होते हैं, वरना बेस होते हैं, या फिर सॉल्ट होते हैं, या फिर नॉर्मली हमारा क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, राइट। सो मैं हर किसी के लिए केस करके मैं लिख देता हूँ, देयर इज एन फैक्टर। अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, ठीक है, केस 1 का मतलब होता है कि अगर मैं फॉर एसिड के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सो फॉर एसिड के लिए क्या हो जाएगा, that is for acid n factor will be equals to n factor equals to that is the number of
रिप्लेसेबल प्लेसेबल H प्लस आयन, मतलब एक एसिड जो होता है वो कितना H प्लस आयन को फर्निश कर सकता है एक्वस सॉल्यूशंस में, तो उसको मेनली हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसका एन फैक्टर बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सम फ्यू ऑफ द एसिड्स, लाइक लेट्स सपोज आई एम टेकिंग HCl। ओके, सो HCl के केसेस में अगर मैं HCl को अगर मैं आयनाइज करता हूँ किस में बेटा, एक्वस सॉल्यूशंस में, ये फिर लाइक what I will dissolve the HCl in aqueous solution like in water solvent, so the HCl will be get ionized into H plus Cl minus. Okay, so for HCl the N factor will be 1. So N factor will be 1. If I'm talking about another example, let's take an example that is H2SO4. Okay, so when the H2SO4 is ionized in the presence of aqueous solution or with water, the H2SO4 will be get ionized to 2H plus SO4 minus 2 plus SO4 minus 2. For here, for H2SO4 the N factor will become 2. So for H2SO4, the N factor will become how much? 2. Okay, let's take some other examples as well. Let's suppose I'm talking about S3PO4, S3PO2. Okay, there are two things, that is S3PO4. एक बार मैं S3PO4 के लिए दिखाता हूँ, एक बार हो जाएगा S3PO3 के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, और एक बार S3PO2 के लिए दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इससे सवाल तो बहुत बनता है। ओके, सो S3PO4 का अगर मैं बात करता हूँ तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। So what is the structure for S3PO4? So I can easily write that is P double bond O. Here it is OH, OH, and it is OH. Okay, एक बार चेक कर लो H3PO4 है ये। Okay, so अगर मैं H3PO4 को अगर मैं aqueous solutions में अगर मैं डाल देता हूं तो how many number of H plus ion it can furnish? So here there will be 3 number of H plus ion it can furnish. So इसका जो n factor मिलने वाला है वो n factor कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए अगर मैं n factor की बात करता हूं, so n factor for this S3PO4 will be, n factor will be, it will be 3 number of H plus ion it can furnish. So here the n factor will be 3. But if I'm talking about S3PO3, S3PO3 की जब मैं बात करता हूँ तो S3PO3 का केसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज मेनली हम ये जो एसिड्स होते हैं इस एसिड में ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है तो वो ही रिप्लेसेबल होता है। अगर फॉस्फोरस के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो वो मेनली आपका फर्निश नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। सो हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट H3PO3, सो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे हो जाएगा OH। देखो एक बार ये स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेते हैं। देखो P एक है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 एंड हाइड्रोजन इज आल्सो 3। सो नाउ टेल मी वन थिंग, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ H आर रिप्लेसेबल, बिकॉज I told you already, right, that what the number of hydrogen that is completely attached or directly attached to the oxygen atom are replaceable hydrogen, or the number of protons it can furnish. So here for this structure there are two number of H plus and that can be furnished in the aqueous solution. So here I can say that is the N factor will be 2, because these are the two hydrogen which can be replaced with the aqueous solution. So here the N factor will be 2. The N factor will be. Okay, so let's talk about the another acid, that is S3PO2. Okay, if I'm talking about S3PO2, so here if I draw the structure, so here the structure will be P double bond O. Here it is hydrogen, here it is hydrogen, and here it is OH. This is quite simple. Like आपको जितने भी ऑक्सीजन दिया होगा, आप एक बार एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड पे ले लो, और जितने भी ऑक्सीजन है सारे के साथ आप हाइड्रोजन को लगा के देखो। अगर आपका ऑक्सीजन एनफ नहीं है तो डायरेक्टली आप फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो। सो इट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। सो हियर, so again if I'm talking about it, how many number of H are replaceable hydrogen? So here as you can see, that is this is the only hydrogen which is directly attached to the oxygen atom. So here that is one number of hydrogen is replaceable. So here I can say there is the N factor will be 1. Here the N factor will be 1. ओके, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी एसिड्स होता है जहां पे आपको अगर एन फैक्टर निकालना होता है तो आप कैसे उसको एन फैक्टर निकाल सकते हो। सो प्लीज नोट इट डाउन, या फिर आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो, देन आई विल इरेज इट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। हमने केस 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केस नंबर 2, जो कि बेस के लिए हम देखेंगे। तो बेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ जो रिवाइज करने के लिए। ओके, सो कैन ऐड वन मोर स्लाइड। 5
एक सेकेंड. Okay, yeah. So if I'm talking about case number two, okay, if I'm talking about case number two में we will look into how to calculate the n factor for base, okay, for base. अच्छा, बेस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एन फैक्टर निकालना एज लाइक द एसिड होता है कि एसिड में जैसे कि आप कितना एक्वस सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ H प्लस एंड फर्नेस होता है. सो बेस में हम लोग देख सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ OH माइनस और हाइड्रोक्साइड एंड इट कैन फर्नेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट विल बी द एन फैक्टर. सो हियर लेट्स, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज एन फैक्टर इक्वल्स टू दैट इज द नंबर ऑफ OH minus ion it furnace in aqueous solution. ओके, आपका एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना नंबर ऑफ OH माइनस है या फिर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड वो फर्नेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एन फैक्टर. सो लुक इनटू सम फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स. लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि BaOH होल टू बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं. सो इसको अगर आप क्या करते हो ना, एक्वस सॉल्यूशन डाल दो, बिकॉज़ वी ऑल नो दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रांग बेस. So of course, whenever you will dissolve the barium hydroxide or put the barium hydroxide in aqueous solution, it's going to furnace Ba plus 2 ion, okay, plus it will give two number of OH minus ion, isn't it? So यहाँ पे जो आपका Ba plus 2 along with two OH minus ion वो देता है. So here I can see that is there is two number of OH minus ion it can furnish in the aqueous solution. So for this base the n factor will become 2, okay, because there are two number of replaceable hydroxide ions, so the n factor will become 2. Now let's talk about another example, like if I'm talking about let's suppose sodium hydroxide, okay, if I'm talking about sodium hydroxide or potassium hydroxide, any kind of group number 1 element का कोई भी hydroxide आप ले लो, तो उसको अगर आप क्या करते हो ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, so it will get ionized to Na plus OH minus ion. So here I can see that is there is only one number of OH minus ion or one number of hydroxide ion that can be furnished when the NaOH is dissolved in aqueous solution. So here the n factor will become again, it will be 1. So here the n factor become 1. Sure, the n factor become 1. Let's take another example, like if I'm talking about AlOH whole 3, like aluminum hydroxide का मैं बात करता हूँ. So here if I'm taking AlOH whole 3, okay, so if I'll like put the aluminum hydroxide in aqueous solution, so it's going to give Al plus 3 plus 3 OH minus. So here there are three number of OH minus it can furnish in the aqueous solution, so the n factor will become 3 for it. So here the n factor will be 3. Okay, so I hope you got the point कि actually में अगर base के लिए अगर मैं बात करते हैं तो how many number of replaceable OH minus ion are there in the aqueous solution, so that will be the number of n factor. All right, so just take a snapshot of it, then I will move to the next slide. Okay, now talking about the n factor for salt. Okay, so we are done with the acid part, or we are done with calculation of n factor for any kind of acid. Now again we are done with the calculation of the n factor for a base. Now we will talk about the calculation of n factor for salt. All right, so now case 3 we will talk about the calculation of n factor for salt. Okay, n factor फॉर सॉल्ट. कोई भी सॉल्ट के लिए अगर हम एन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो उससे हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं. ओके, सो एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, जब भी मैं सॉल्ट की बात करता हूँ, एज वी ऑल नो दैट सॉल्ट formed by the neutralization reaction, right? So when an acid reacts with a base, it will undergo neutralization reaction. By eliminations of water, it will give rise to a salt. So here if I'm talking about the salt, तो salt में आपका मेनली क्या होता है, एक एसिड का पार्ट होता है, एक बेस का पार्ट होता है, जो कि रेडिकल्स वाला भी हम पढ़ेंगे. So यहाँ पे salt को अगर मैं आयनाइज करता हूँ, you will have an cations as well as an anions. So here the n factor will become, the n factor will be n factor equals to, that is the mode of charge on cation or anion.
ओके आपका टोटल चार्ज कितना है कैटायन के ऊपर या फिर टोटल चार्ज आपका एनायन के ऊपर कितना है, उसका अगर मैं मोड ले लेता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर बोलते हैं। तो मोड ऑफ, यहाँ पे एक बार इधर भी लिख देता हूँ, टोटल चार्ज लिख देते हैं इसको, टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड टोटल चार्ज ऑन एनायन। ओके लेट्स लुक इनटू फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर वन, let's suppose I'm talking about the very घरेलू salt that is sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड को बेटा अगर मैं आयनाइज करता हूँ, so I'll be having sodium plus ion plus as well as the chloride ion, right? Na plus and Cl minus। So if I'm talking about the n factor for it, like sodium chloride के लिए अगर मुझे n factor निकालना पड़ता है, so as I already told you, that is n factor will be the mode of total charge occupied by the cations or the total charge side on the anion। So here the n factor will become, so the n factor will be, and factor will be how many charges there I mean occupied by the cation, so it is one, right? So the n factor will be the mode of one, so it will become one। okay so when I'm talking about n factor of anion, ठीक है, anion के लिए भी कितना आएगा, -1 का अगर हम मोड ले लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सो -1 का भी मोड कितना आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा। तो दिस विल बी द n फैक्टर फॉर सोडियम क्लोराइड। ओके लेट्स टेक another example, एक अदर एग्जांपल लेते हैं। Let's suppose I'm talking about Al2SO4 whole 3, Al2SO4 whole 3। As you all know that is ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट मेनली किस किस का लाइक मिक्सचर से बनता है। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड along with sulfuric acid। Whenever you will treat the aluminum hydroxide with sulfuric acid, you will get a salt like aluminum sulfate। So here it will like ionize the aluminum sulfate, you will be having 2 moles of Al plus 3 plus 3 moles of SO4 minus 2। Okay, now just look into the thing like what I wrote here, that is n factor is the mode of total charge of cations and anion। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, एक बार बता दो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है, isn't it? तो दो एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज होगा, +6 होगा, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका एनायंस SO4 माइनस 2 मतलब सल्फेट आयंस होता है, यहाँ पे एनायन के रूप में है, तो एक सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो अगर मैं 3 मोल्स की बात करता हूँ तो 3 मोल्स में कितना चार्ज आ जाएगा, इट विल बी -6। सो अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ, सो यहाँ पे आपका n फैक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n फैक्टर इक्वल्स टू आपका Al प्लस 3 है। तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है। सो दो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल +6 हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं +6 का अगर मैं मोड ले लेता हूँ, सो द n फैक्टर विल बिकम 6। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनायंस की लाइक अनायंस की परसेप्शन में अगर मैं देखूं तो अनायंस के थ्रू में भी मुझे कितना मिलेगा, वही देखो इसमें -2, एक पे -2 है तो तीनों में कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 का भी मोड कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 6। तो अगर मैं बताऊं कि इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, सो इसका n फैक्टर विल बिकम 6। सो हियर द n फैक्टर विल बी 6, n फैक्टर विल बी 6। आई होप कि ये आपको क्लियर है अभी तक। नो नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज कि आपका सॉल्ट हो गया, आई मीन एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज केस नंबर 4, केस नंबर 4 if I'm talking about oxidizing agent and reducing agent। So first of all we need to understand that is what is oxidizing agent and what is reducing agent is। Okay, for oxidizing agent, for oxidizing agent and reducing agent, and reducing agent, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसको यूजुअली हम ऐसे समझते हैं ना, लाइक वो एग्जांपल देते हैं कि बीमा वाज लाइक बीमा एजेंट जो होता है, लाइक सपोज आपका कोई एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, राइट? सो वहां पे मेनली आपका एजेंट जो आते हैं तो वो मेनली क्या करते हैं, घर पे हमें कन्विंस करते हैं कि आप ये वाला इंश्योरेंस करवा लो, सो दिस बेनिफिट्स यू विल बी हैविंग, लाइक आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा एंड ऑल। सो एजेंट का काम होता है कि वो हमें रजिस्टर करवाता है या फिर हम इंश्योरेंस लेंगे तो उसके लिए हमें लाइक कन्विंस करता है, isn't it? सो यहाँ पे अगर मैं उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपका जो इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो हमें कन्विंस करवाता है इंश्योरेंस खरीदने के लिए, राइट? सो सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा ना, दिस इज समवन और दिस इज अ केमिकल स्पीसीज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर
एंड वो खुद किस में जाएगा, रिडक्शंस में जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इट्स एन एजेंट जो कि दूसरों का ऑक्सीडेशंस करवाता है एंड वो खुद रिडक्शंस में जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इफ आई अप्लाई इन द रिड्यूसिंग एजेंट, सो आई कैन से कि रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट जो कि दूसरों का रिडक्शंस करवाता है या फिर दूसरे केमिकल स्पीसीज जो होते हैं उनका रिडक्शंस करवाता है एंड खुद का वो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशंस करवाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दो दो लाइन यहाँ पे लिखना चाहूंगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दैट इज द स्पीसीज who oxidize other who oxidize other and reduce itself are called oxidizing agent, मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है एंड खुद वो रिडक्शंस में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा ना, वैसा केमिकल स्पीसीज जो दूसरों को रिडक्शंस करवाता है एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको मेनली हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज द केमिकल स्पीसीज, that is the chemical species which oxidize itself which oxidize itself and reduced other species are called reducing agent are called reducing agent। ठीक है, ओके, जस्ट नोट इट डाउन। इसको एक बार आप स्नैपशॉट ले सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में मेनली की डिफरेंस क्या होता है ना, दीज आर द एजेंट्स और दीज आर द केमिकल स्पीसीज who oxidize other and reduce itself are called the oxidizing agent। if I'm talking about the reducing agent, so these are the chemical species जो कि खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड दूसरों को वो रिड्यूस करते हैं, तो उनको हम मेनली क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एज सच अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि यहाँ पे हमें एन फैक्टर कैसे पता चलेगा। सो whenever I'm talking about an n factor, so how to calculate the n factor for oxidizing agent and reducing agent, so it's quite simple. There is number of electron taking part, number of electron takes part in oxidation or reduction will be the n factor। That means if a chemical species is undergoing reduction, so reductions means gain of electron, अगर कोई chemical species क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो कितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे, मतलब 1 mole of that species how many number of electron it's gaining, so that number of electron will call the n factor for that। And if I'm talking about the oxidations means we can say that is a loss of electron। if in chemical species is like giving electron or लाइक कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसको मेनली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली टेक्स पार्ट इन दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट विल बी द नंबर ऑफ एन और दैट विल कॉल द एन फैक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ like oxidation or reduction। So let's look into few of the examples। if I'm talking about, there's a species called KMnO for potassium permanganate, you might have heard about it, right? So potassium permanganate को अगर मैं क्या करता हूँ ना, एसिडिक मीडियम में अगर मैं उसको देखते हैं ये रिडक्शन में जाएगा कि ऑक्सीडेशन में जाएगा। सो यहाँ पे KMnO4 को अगर मैं क्या करता हूँ Mn+2 में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, सो नाउ हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे जो मैंगनीज है वो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एंड वी विल लुक इनटू इट कि वो खुद रिडक्शन में जा रहे हैं या ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, एंड यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा। सो वी विल लुक इनटू दिस पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज। सो लेट्स चेक इट। अभी पोटेशियम का मेरे को पता है, पोटेशियम का कितना होता है, +1 क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का होता है, प्लस मैंगनीज का कितना होगा, x प्लस ऑक्साइड का होता है -2 into 4 equals to, this is a neutral species, so the overall charge will be 0। so here it will be 1 plus x minus 8 equals to 0। so here it is x minus 7 equals to 0, so x equals to +7। so here I can say there is in potassium permanganate manganese is in the oxidation state of +7, and from the +7 oxidation state it has converted to +2। so now we can say that is
+7 मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी था, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मींस ऑब्वियसली बात है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मैंगनीज हैज गेन्ड? देखो 7 इलेक्ट्रॉन की कमी था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास पहले 700 रुपए का आपके पास कमी था, अब किसी ने आपको कुछ पैसा दे दिया तो आप आपके पास 200 रुपए की कमी है, मतलब आप यू नीड 200 more to like buy stuffs or something like that. So in initially at first you are in the need of 700 rupees to buy that stuff, but now someone has given to you, someone gave you few of the amounts, and you are just in the need of 200 more to buy that stuff. So अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि how much that person gave you, so obviously बात है आपको कितना रुपए दिया होगा उसने, 500 रुपीज दिया होगा। तो यहाँ पे अगर वही चीज की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंगनीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी था, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द मैंगनीज हैज गेन्ड और लूज? सो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे उसने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन की उसने गेन किया होगा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शंस बोलते हैं। सो यहाँ पे वी कैन इजीली से दैट इज मैंगनीज इज अंडरगो रिडक्शंस। अगर मैंगनीज खुद किस में जा रहे हैं, रिडक्शन में जा रहे हैं, सो इट विल बी एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैंगनीज खुद रिडक्शन में जाएगा तो दूसरों को किसके लिए हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इनका जो क्या होता है, आपस में इन लोग लेना देना करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, मतलब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होता है कि यहाँ पे मेनली देयर मस्ट बी अ केमिकल स्पीसीज व्हिच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हिम और टू मैंगनीज ना, तब ना जाके ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो Mn+2 में पहुंच पाएगा। अगर कोई देने वाला ही नहीं है तो ये लेगा कहां से, वही तो चीज है। तो यहाँ पे Mn+7 से वो किस में जाएगा, Mn+2 में जाएगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। तो गेन कर लिया तो इसका जो एन फैक्टर होगा अभी के लिए, तो एन फैक्टर विल बी हाउ मच, इट विल बी 5। ओके, गॉट माई पॉइंट। सो यहाँ पे आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एन फैक्टर की बात करूँ तो ये 5 हो जाता है। ओके, सो नाउ हियर थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़े। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? ओके, सो नॉर्मेलिटी मैंने पहले बताया कि आपका 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका कुछ यूं होता है, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। नाउ आई डिस्कस फ्यू ऑफ द केसेस हाउ टू फाइंड द एन फैक्टर। सो हियर there is a case number 1 for any kind of acid, the number of replaceable H plus ion will call the N factor. And if I'm talking about the base, so that is the number of OH minus ion replaceable, or the number of OH minus ion that can be furnished in the aqueous solution, that will be called the N factor. If I'm talking about any kind of salt, if I'm talking about salt, so here the N factor will be the total or the mode of charge on the cation and the mode of charge on the anion, that the total charge on the anion. So I sort few of the examples in order to have a better understanding on the N factor thing. Now we are talking about oxidizing agent and reducing agent. So I discussed what is oxidizing agent is and what is reducing agent is. That is any kind of chemical species will help another species to get reduced, to get oxidized, and it reduced itself is called oxidizing agent. And if I'm talking about the reducing agent, so that is a chemical species which will help other species to undergo reductions, and it will uh, oxidize itself, are called the reducing agent. And I and how to find the n factor for the reducing agent, oxidizing agent? It is nothing but the number of electron that takes part in the reductions and the oxidation process, that is the n factor. So here there is an example, that is I talk about the potassium permanganate. So when the potassium permanganate is getting reduced in the acidic medium to Mn+2, it means the initially it was in the +7 oxidation state, now it gets reduced to Mn+2 by gaining 5 number of electrons. So here the n factor will be 5. Okay, I think it's clear, it's clear till now. Now we will do few of the questions on the normality chapter. Let's take an example how to find the normality. So now talking about I'm taking an example. Okay, 30 gram of sodium hydroxide mixed with enough amount of water, enough amount of water to prepare
5 liter solution. 5 liter solution. Now calculate the normality of the solution. Calculate the normality of the solution. Okay. So what is the question has asked? That is 30 gram of sodium hydroxide. You put it in a container and you mixed with or you diluted with it water, and you fix the volume till 5 liter. So whatever solutions you have prepared, now just find the normality of the solution. So normality is also in concentration term, as I talked about. This is also depends on the temperature. So here, if I want to solve it, right? So first of all, I need to find that what is given to me. So solution. So what is given to me? So given, that is the mass of solute. Sodium hydroxide is the solute, of course. So the mass of solid is given to me as 30 gram. And what else? Here, the volume of solution. Volume of solution is given to you. Volume of solution is given to you as 5 liter. Okay. So what is the formula to find the normality? I have told you that is normality equals to number of gram equivalent. Number of gram equivalent by volume of solution, by volume of solution in liter. In liter. Okay. Now, talking about the number of gram equivalent. Okay. So number of gram equivalent को find out करने के लिए मैंने already formula आपको बता चुका हूँ. There is the given mass by the equivalent mass. Okay. So here the given mass you were given with 30 gram. So in order to find the number of gram equivalent equals to given mass by equivalent mass. Given mass by equivalent mass. In order to find the equivalent mass, it will be molar mass by n factor. By n factor. And here, if I'm talking about the n factor, so here I can see that is sodium hydroxide is a base. So it means the n factor will be the number of replaceable OH minus ion in the aqueous solution. So as I can see that in sodium hydroxide only one OH minus can be furnished, so n factor will be 1. So n factor will be 1. So the equivalent mass will be equals to the molar mass. So what is the molar mass of sodium hydroxide? Sodium is having 23, right? 23. Oxygen is having 16 plus 1. So it will become 40. Okay. It will become 40. So the equivalent mass will be again, equivalent mass will be 40. Equivalent mass will be 40. Okay. So what is the given mass it has given? See to kiya na? 24. Okay, equivalent mass will be 40 gram. So here the number of gram equivalent will be given mass has given to me 30 by equivalent mass is 40. So it will be 3 by 4. So this is the number of gram equivalent. And what is the volume of solutions I'm given with? It is 5 liter, isn't it? So the normality will become normality equals to 3 by 4 by 5 because it's already in the unit of 5 liter. So here I can say that is 3 by 20 will be the normality, or आप उसको decimals में भी कर सकते हो. There is no problem. Okay. Okay, just take a snapshot of this small problem. Then we will discuss about the change in normality. क्या होता है dilutions पे, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम discussion करेंगे. Okay, till then just take the snapshot. Okay. नाउ टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मेलिटी का चेंजेस क्या होगा अगर हम डायल्यूशंस कर लेते हैं तो. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया. और एक स्लाइड लेते हैं. ओके, सो अब नॉर्मेलिटी का क्या चेंजेस होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप क्या करते हैं नॉर्मेलिटी को देखते हैं ऑन डायल्यूशन मान लो मैंने आपको कोई गिवन नॉर्मलिटी और कोई सर्टेन नॉर्मल सॉल्यूशन सबको गिवन है, एंड वहां पे आप लोग क्या करते हो ना, वहां पे आप पानी डाल देते हो या फिर डायल्यूटेड कर देते हो. तो जैसे कि मैंने मोलैरिटी में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गोना चेंज, राइट. सो हियर आल्सो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नॉट गोना चेंज. यहाँ पे जो सॉलिड का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो चेंज नहीं होता है. तो मान लो मैं आपका सोल्यूशन नंबर 1 लेता हूँ, राइट. तो सोल्यूशन नंबर 1 पे आपका क्या होगा, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही है ना। तो आपका ये मान लो ये जो वॉल्यूम है ना इसको मैं V1 ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर बताओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना तो कितना आ जाएगा, ये N1V1 आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर नॉर्मेटिव मतलब सॉल्यूशन टू, जब मैंने उसको क्या कर दिया डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन मतलब उस कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद उसका वॉल्यूम तो चेंजेस होगा। मान लो 3 लीटर का था, मैंने 2 लीटर का पानी डाल दिया तो वो वॉल्यूम कितने में चेंज हो जाएगा, 5 लीटर में हो जाएगा। सो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम बट दिस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय क्या हो जाएगा V2 इन लीटर। सो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो N2V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो आप देखो दोनों ही इक्वेशंस और both the equations are represented for the number of gram equivalent, so I can easily equate these two. So here I can say that is N1V1 equals to क्या हो जाएगा, N2V2 हो जाएगा। So this is the formula to find कि अगर आपको कोई new normality of solution चाहिए on dilution, so this is the formula by which you can easily calculate the normality of the solutions। and यहाँ पे और एक important formula मैं बताना चाहूंगा, इसको हम derive भी करेंगे कहीं पे, दैट इज आपको नॉर्मेलिटी जो होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो कभी भी आपको मोलैरिटी अगर गिवन होगा तो उसमें उसका एन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी ऑफ 5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ क्वेश्चन यूं पूछता है कि इफ यू आर गिवन विथ 5 molar of or 5 molarity of calcium hydroxide solution, so what will be the normality of that solution? So here I can easily say what is the solute, this is calcium hydroxide, so how many number of OH minus are replaceable, so there are 2 number of OH minus are replaceable in the aqueous solution, so यहाँ पे मैं aqueous solution भी लिख देता हूँ। so here the n factor will become 2 because अगर मैं calcium hydroxide को अगर मैं ionize करता हूँ so I'll be having Ca plus 2 plus 2 OH minus, isn't it? So here, as I told you, that is the relationship between normality and molarity will be normality equals to molarity into n factor. So you are given with a molarity that is 5 molar and normality has asked, right? So normality equals to क्या हो जाएगा, molarity into 2. So now molarity is 5 into 2. So it will become 10. So the normality of the solutions will be 10. नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ वेस, बट याद रहे कि आपका जो डिनोमिनेटर में जो भी वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी इन द लीटर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, इसको आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग कि अगर बात आता है कि अगर मान लो दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन या फिर दोनों डिफरेंट नॉर्मेलिटी का आपको सॉल्यूशंस गिवन है एंड दोनों को ही हम मिक्सअप कर रहे हैं, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, और जो नया नया जो नॉर्मेलिटी होगा उसको हम कैसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ये याद रख लो, मतलब दिमाग में आप लोग गांठ बांध लो कि ये चीज को कभी भी अगर एसिड एंड बेस को आप मिला रहे हो आपस में तो हमेशा उसका नॉर्मेलिटी वाला टर्म आपको कंसीडर करना है, मोलैरिटी में वो सॉल्व नहीं होगा। अगर कोई बोलता है, लेट सपोज मैं बोल भी देता हूं कि आपका मान लो कोई भी सिंगल H प्लस आयन अगर रिप्लेस हो रहे हैं फिर सिंगल OH माइनस रिप्लेस हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सर्टेन मोलैरिटी ऑफ HCl को सर्टेन मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप मिला रहे हो तो वहां पे अगर आपका टीचर बोले होंगे कि वहां पे आप क्या करो ना, M1V1 माइनस M2V2 का मोड लेके उसको डिवाइड कर दो V1 प्लस V2 से, that is okay but that is not applicable for all the cases। लेट सपोज वहां पे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा घुमा देता है, आपको ऐसे बोलता है कि आपका कुछ सर्टेन मोलैरिटी ऑफ HCl को ले लो ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम एंड दैट इज मिक्स्ड विद सर्टेन मोलैरिटी ऑफ
बेस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, तो वहां पे आपको हमेशा नॉर्मेलिटी के साथ ही मूव करना है। वहां पे अगर आप मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो वहां पे गलती होने का चांसेस है। तो हमेशा जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है, इफ लेट्स सपोज आई एम मिक्सिंग फ्यू वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मोलैरिटी ऑफ एसिड with certain volume, certain molarity of and certain volume of base, and I'm mixing it together to get a solution. तो वहां पे हमेशा आप नॉर्मेलिटी के साथ ही मूव करना, वहां पे मोलैरिटी के साथ मूव करने से वो वाला आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो गलत होने का चांसेस है। सो लेट्स लुक इनटू फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। अगर केस नंबर 1, अगर मैं मिक्स अप करता हूं दोनों एसिड्स को, लेट्स सपोज मैं एसिड प्लस एसिड को मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो एसिड नंबर 2 है ये, एसिड नंबर 1। तो एसिड नंबर 1 का आपका नॉर्मेलिटी मान लो N1 गिवन है, एंड आपका वॉल्यूम कितना है, V1 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने ये एसिड 2 का मान लो नॉर्मेलिटी आपको N2 गिवन है एंड वॉल्यूम आपको V2 गिवन है, एंड यहाँ पे मैं इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन में यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, मतलब वो भी क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशंस मिला उस सोल्यूशन का न्यू नॉर्मेलिटी कितना होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है, दैट इज N3 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज N1V1 प्लस N2V2 बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। So this is the or this is how we can find the new normality of the prepared solutions. केस नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूँ तो केस नंबर 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर मैं कोई बेस नंबर 1 को मिला रहा हूँ किसके साथ, कोई भी एक सर्टेन बेस के साथ, तो मान लो यहाँ पे बेस नंबर 1 का नॉर्मेलिटी N1 है एंड बेस नंबर 1 का जो वॉल्यूम होगा वो V1 वॉल्यूम ऑफ, मैं बेस को ऐड कर रहा हूँ विथ अ बेस 2 जिसका नॉर्मेलिटी N2 है एंड इसका वॉल्यूम V2 होगा, एंड आई एम मिक्सिंग दिस टू बेसिस टुगेदर एंड आई विल गेट अ बेसिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, और एक बेसिक सॉल्यूशंस मिलेगा, एंड यहाँ पे जो आपका न्यू नॉर्मेलिटी होगा दैट इज N3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द सेम N1V1 प्लस N2V2 बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ मतलब इसको लेकर मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो करवाऊंगा ऑब्वियसली, ओके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस केस 3 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो कि अगर मान लो मैं कोई एसिड को मिला रहा हूँ, एसिड के साथ अगर मैं कोई बेस को मिला रहा हूँ एंड एसिड का मान लो नॉर्मेलिटी N1 है एंड इसका V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड को मैं ऐड कर रहा हूँ N2 नॉर्मेलिटी ऑफ बेस के साथ एंड V2 वॉल्यूम ऑफ द बेस के साथ, तो वहां पे मुझे एक सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। ये जो सॉल्यूशंस होगा वो तो आपको पता होगा कि वो सॉल्ट के साथ आपको वाटर मतलब एनी वाटर मिलेगा, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें अगर मैं इस सॉल्यूशंस का जो नॉर्मेलिटी होगा N3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, N1V1 माइनस N2V2 का मोड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आने का भी चांसेस है। तो यहाँ पे किसी का मल्टीप्लीकेशन बड़ा आएगा, किसी का मल्टीप्लीकेशन छोटा आएगा, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आने का जो चांसेस है, उस नेगेटिव साइन आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हटाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मोड डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड बेस्ड सॉल्यूशन, और वहां पे आपको जो जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है, ओके। सो नाउ, सो इतना था आपका कंसंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग जितने भी था। तो अब इसमें हम ज्यादा टाइम ना लेके वी विल मूव इनटू द अदर पार्ट्स, लाइक बहुत सारे पार्ट्स है अभी भी। हेनरीज लॉ है, रॉल्स लॉ है, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइसोट्रोप्स, colligative properties. There is too much in our plate. So let's finish this concentration terms things over here only, and we will look into few of the questions जो कि आपका in-text questions already है। So look into this question, ये आपका in-text question का first question है जो कि मैं already यहाँ पे लिख रखा हूँ, like in order to avoid the wastage of time. So here the question is asked, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। सो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि मास परसेंटेज कितना होगा, राइट। कितना कितना, अच्छा आपका क्या क्या मिक्सअप हुआ है, आपका बेंजीन मिक्सअप हुआ है किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो जिन लोग को पता नहीं है मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपका जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है आपका C6H6, ओके। एंड आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो CCl4 आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बात कुछ ये बोल रहा है कि मास परसेंटेज हमें निकालना है, राइट, ओके। सो परसेंटेज ऑफ बेंजीन, अच्छा मास परसेंटेज का पहले तो फॉर्मूला जान लेते हैं क्या है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अगर एक बार हम सॉल्यूट कर लेंगे या फिर अगर हमें सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, बाय क्या होगा,
टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100, ये तो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज मास निकालने का। सो यहाँ पे मुझे दोनों का ही मास परसेंटेज निकालना है, राइट। तो बेंजीन का मास कितना है, इट्स 22 ग्राम, 22 ग्राम, एंड कार्बन टेट्राइड का मास कितना है 122 ग्राम। एंड वी नो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम ऐसे तुम दोनों सॉलिड को अगर तुम ऐड कर देते हो तो वहां पे जो सॉल्यूशंस का मास होगा वो दोनों का मास का सम होगा। सो यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मास ऑफ सॉल्यूशंस मेरा कितना निकल के आ जाएगा, इट विल बी 22 ग्राम plus 122 grams, so it is coming out here 144 grams. So I got the mass of the solution. Now calculate the mass percentage of benzene. So percentage mass of benzene, percentage mass of benzene will be, that is 22 by 144 into 100. Okay, so ये कितना हो जाएगा एक बार चेक कर लो, तो 2200 by 144, तो ये कितना आ जाएगा। मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप लोग अवॉइड करना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, बिकॉज आपको, मेरे को तो जीमेंस नहीं देना है बट आप लोग को तो देना है। सो आप लोग खुद से थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करना। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 15.27%. Okay, and if I'm talking about the percentage mass of, okay, percentage mass of, अगर मैं CCl4 की अगर मैं बात करता हूँ, so the mass of CCl4 has given to you as 122 ग्राम। okay, so it will be 122 by 144 into ये 100 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 12200 by 144, तो इसको अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो इसका वैल्यू समथिंग अराउंड आपका आ जाएगा, इट्स अबाउट 84.72, 84.72 सही तो क्या, इन दोनों को मिला दो एक बार, 84.72 एंड अगर मैं 15.27 को मिलाता हूँ 99.99 आ रहा है, मतलब हाँ अप्रोक्सीमेटली आपका जो चीज है वो सेम है। मतलब 722 को आप ऐसे भी ले, इसको हम 28 ले लेते हैं एंड ये 72 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास परसेंटेज। जस्ट इसको आपको फॉर्मूले पे डालना है, क्वाइट इजी क्वेश्चन था, तो इसको बस आपको फॉर्मूले पे डालना है एंड आपको जस्ट कैलकुलेशंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज quite easy. Okay, so there are other index questions as well, like that I'm going to solve in the next session. तो next session में हम इसका solve करेंगे, and जितना भी मैंने पढ़ाया है एक बार आप उसको रिवाइज करना, क्योंकि कीप रिवीजन, जितना आप रिवाइज करोगे आपका रिटेंशन पावर उतना ज्यादा होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।